عشق عرفان کی دولت رشیدی میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ کہ ہندوستان کے ایک اصلی چہرے کو پیش کرنے کے لیے ہم ایک سٹیج پر جمع ہیں، اور یقیناً جب جب آزادی کا سوال آئے گا یہ سارے چہرے آپ کو ایک میدان میں ضرور نظر آئیں گے میرے عزیزوں، میں تمام چیزوں پر گفتگو نہ کر سکتا ہوں، یہاں جتنی باتیں ہو چکی بہت کافی ہیں۔ ہمارے دلوں کی باتیں ان تمام حضرات نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگرچہ ہندوؤں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود ہمارے مجمع میں اکثریت آج ہندو حضرات کی ہے جو ہمارے سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہندوستانی ہونے پر ہمیں اسی بات پر فخر ہے کہ ہم کسی ہندو کے پڑوسی ہونے پر کبھی نہیں ڈرتے، اور کوئی ہندو ہمارے مسلمان کے پڑوسی ہونے پر نہیں ڈرتا۔ عزیزان گرامی، ایک چھوٹی سی بات سے میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ بغداد میں ایک بہت بڑا خلیفہ تھا، بڑا سلطان۔ اس کے دربار میں بیٹھنے کے وقت ایک ایسی بھیانک آواز آئی کہ اس کی دیواریں ہل گئی، بہت زوردار آواز آئی۔ تو اس نے پوچھا معلوم کرو یہ آواز کہاں سے آئی، اتنی بڑی گونج کہاں سے آئی ہے؟ تو پتہ کیا گیا وہ زمانہ تھا سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی کا، غوث العظم دستگیر کا۔ تو لوگوں نے پتہ کیا کہ آج شیخ عبد القادر جیلانی اپنی خانقاہ میں وہ چھینکے تھے، ان کے مریدوں نے صرف جواب دیا تو دیواریں ہل گئی، صرف جواب دیا تھا الحمدللہ کہہ کر دیواریں ہل گئی۔ یاد رکھو جس کے سینے میں ایمان ہو اور سچائی ہو، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بڑی بڑی طاقتوں کی دیواریں ہلا دیتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کوئی بھی نشے میں چور آج اگر تخت پر بیٹھ کر یہ سوچتا ہے میرا کچھ نہیں ہوگا، ہم نے دیکھا ہے 33 سال 34 سال حکومت کرنے والے ڈکٹیٹر ایجپٹ میں، مصر میں، لیبیا میں، یمن میں 40 سال حکومتیں کرنے کے بعد بھی جب عوام مظاہرے کے طور پر باہر آئی تو آج انہیں جیل کی ہوا کھانی پڑ رہی ہے۔ اور آپ نے ابھی تاریخ میں ابھی نیوز میں سنا ہوگا پاکستان کے پرانے صدر کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور اتنا ہی نہیں، اگر موت سے پہلے وہ مر جائے تو 3 دن چوراہے پر لاش لٹکائی جائے۔ ہر ظالم کا یہی انجام ہوتا ہے، ہر ظالم کا یہی انجام ہوتا ہے۔ آج اگر ظلم کے پنجے یہ دراز کر رہے ہیں تو تم بھی اپنے اس تباہی کا انتظار کرو، اس لیے کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے جب لومڑی کی موت آتی ہے تو شہر کے قریب آ جاتا ہے، جب چراغ کو بجھنا ہوتا ہے تو زیادہ پھڑپڑاتا ہے۔ تو یہ ہم نے 6 سال سے بار بار سنا کہ سب کا وکاس، سب کا ساتھ، سب کا وکاس۔ یہ کون سا سب کا ساتھ ہے؟ یہ کیسا ساتھ ہے جس میں ایک پرٹیکولر مذہب والوں کو الگ کر کے؟ کون سا ساتھ ہے؟ جھوٹے ہو اور 1 نمبر کے جھوٹے۔ پوری دنیا میں جھوٹ میں اگر کوئی مشہور ہے تو وہ ہمارا پی ایم مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، 56 انچ کا سینہ، 56 انچ کا سینہ، یہ تو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن 56 انچ کی زبان تو ضرور ہے تمہارے پاس، سینہ تو نہیں ہے۔ یہ لمبی زبان ہے جو بار بار وعدے۔ میں حکومت وقت تک اپنا میسج ضرور پہنچاؤں گا۔ سنو، مسلمان آج کے پیدا ہوئے نہیں ہیں، یہاں پر آج کی پیدائش نہیں ہے، ہماری یہاں پر 1000 سال پرانی تاریخ ہے، 1000 سال پرانی تاریخ ہے۔ جہاں پر ہندوستان میں اگر 500 سال پرانا سومناتھ مندر ہے تو 800 سال پرانا خواجہ غریب نواز کا مزار بھی ہے۔ ہماری تاریخ ساتھ چل رہی ہے۔ اگر یہاں پر گولڈن ٹیمپل ہے سینکڑوں سال پرانا، تو اسی طرح دلی میں نظام الدین 600 سال پرانی مزار ہے۔ میرے عزیزوں، ہماری تاریخ آج کی نہیں ہے، اور اگر انہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ ہم 5 سال میں سب اکھاڑ پھینک دیں گے، ہمارے پاس تو 700 سال تھے، کسی ہندو کو ہم نے باہر نہیں کیا۔ 700 سال تھے، کسی ہندو کو ہندوستان سے الگ نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، یہ ہندوستان کا اصل چہرہ ہے۔ ہندوستان
जब तक ये तमाम मज़ाहिब को लेकर नहीं चलेगा, इसमें वही हाल होगा जो रशिया का हाल हुआ है। सोवियत यूनियन जिस तरह कट कट करके अलग अलग कंट्रियां बन गई, इसी तरह यहां पर भी ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की अखंडता, ये जो यूनिटी है, इसको खत्म करें, ताकि जैन लोग एक तरफ हुकूमत करें, दलित एक तरफ हो जाए, मुसलमान एक तरफ हो जाए। सुनो, आज ये सीएए के जरिए से मुसलमानों को डराने की कोशिश, मैं आज हिंदुओं की इस जागरूकता पर बहुत खुश हूं कि वो आज ही महसूस कर लिए, इसलिए कि इसमें समझदार जो हिंदू है वो जानते हैं कि अगला नंबर ये हमारी तरफ आएगा, इसलिए कि परिंदा दो जानवरों को एक साथ नहीं खाता या भीड़ को एक साथ हमला नहीं करता, पहले एक को अलग कर लेता है, एक पर हमला कर ले फिर दूसरे को। दूसरा अगर ये सोच करके बैठे मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है तो महाबेवकूफ है। यहां पर जो हिंदू रास्ते पर आए हैं, यकीनन उनके दिलों में ये एहसास पैदा हो चुका है कि आज मुसलमानों की सिटीजनशिप की बात आई है और कल दलित के रिजर्वेशन की बात आएगी। देख लेना, ये रिजर्वेशन पर बात करेंगे। अगर बात न करनी होती तो आज हिंदुस्तान की तमाम जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं ये प्राइवेट नहीं की जाती। एयरपोर्ट अथॉरिटी को तमाम चीजें प्राइवेट कंपनियों को बेच दे, टेंडर दे करके सारी प्राइवेट कर दे, ताकि ये जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट नौकरी का दलित हजरात को न मिल सके, ओबीसी को न मिल सके, बल्कि जो पैसे वाले हैं वो प्राइवेट के जरिए से अपना खूब कमाए। मेरे अजीजों, यहां तो इन्होंने 5-6 साल में किसी की जेब नहीं भरी सिवाय अंबानी और अडानी के। ये दो जेब तो खूब भरा, इसलिए कि यहाँ यही हाल है, मैं तुझे हाजी बोलूं, तू मुझे हाजी बोलूं, यही वाला सिस्टम है कि ये उसको बचाए और उसको बचाए। ये ज्यादा दिन तक नहीं चलती है तानाशाही। इससे पहले कि इनको तारीख पढ़ना चाहिए, पहले जो भी आया इस तरह जुल्म किया है, अवाम ने उसको उसके जुल्म का मजा चखाया है। और हम तो एतकाद रखते हैं हमारे रब तबारक व तआला की तरफ से जब पकड़ आती है, अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है, बगैर आवाज के। इन्होंने सोचा भी नहीं था। आज जो हम सड़कों पर आए हैं मेरे अजीजों, सीएए क्या चीज है, क्यों? यहाँ पर कुछ गुमराह करने वाले, कल ही मैं मैसेज देख रहा था, अगर कुछ बिके हुए लोग यहाँ पर भी है तो वो भी सुने, कुछ बिके हुए लोग हैं वो भी सुने हमारी इस बात को, और ये भी मैसेज पहुंचाओ। तुमको अगर तुम्हारे मुंह में कोई चॉकलेट रखा हो, लॉलीपॉप रखा हो और फिर किसी चीज की लालच दिया हो, सुन ले मेरे अजीज, मुसलमानों को ये कहा जा रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस कानून से कोई ताल्लुक नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरने की जरूरत ही नहीं। और जबकि एनआरसी में ये कह रहे हैं 1970 से पहले तुम अपने प्रूफ सारे पेश करो, तुम इसी मुल्क के हो। अब 87 की भी अगर बात करते हैं, एनआरसी पूरे मुल्क में कराई जाएगी, ये होकर रहेगा। प्राइम होम मिनिस्टर सदन में बोल रहा है एनआरसी होकर रहेगी पूरे मुल्क में, चाहे कुछ भी हो जाए। एनआरसी का मतलब नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी पूरे हिंदुस्तानियों की गिनती की जाएगी, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई। जिस तरह हम आधार कार्ड बनाने के लिए, वोटर आईडी बनाने के लिए बूथ पर जाकर लाइन लगाते थे, अब ये एनआरसी के लिए हम अपने कागजात लेकर जाके जमा करें। इससे पहले सीएए ले आए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, इसमें 5 या 6 किस्म के लोगों को इन्होंने सिटीजनशिप देने का वादा कर दिया। ठीक है, सुनिए इसका अंजाम क्या होने वाला। आप खड़े हुए, आपके पास कागजात नहीं, 1970 से पहले के कागजात नहीं, आपके बाप आपके दादा की कोई प्रूफ नहीं। आप जब लाइन में खड़े हैं, अपने कागजात ना होने की बात करेंगे, आपके पास 2 ही ऑप्शन होंगे। आपसे पूछा जाएगा तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम क्रिश्चियन या जैन हो, पारसी हो। अगर तुम कह दिए हाँ मैं ये 6 में से कोई एक हो, तो ठीक है, तुम्हारे लिए हम सीएए ले आए हैं, तुम पाकिस्तान से आए हो, अफगानिस्तान से आए हो, बांग्लादेश से आए हो, हमारी इंडियन सिटीजनशिप लो और रहो। और अगर तुमने कह दिया नहीं मैं मुसलमान हूं, कहा जाएगा तुम घुसपैठी हो, तुम बाहर से आए हुए हो, जाओ डिटेंशन सेंटर में, या ऑलरेडी डिटेंशन सेंटर बनाने भी लग गए। मेरे अजीजों, फिर ये कहते हैं मुसलमान, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, इनका इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं। इस जुमले को तवज्जो से सुनना, ये पागल बनाता है बार बार मोटा अपने जुमलों से।
होशियारी ज्यादा ना करो। सुनो, हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं। बार बार सुन रहे हैं ना आप? हाँ, सही सही। और यही सुनकर के कुछ मुसलमान सड़कों पे कह रहे अरे हमको प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है। आप समझ नहीं रहे इस बिल को, आप समझ नहीं रहे इस कानून को, काहे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ऐसे भी कुछ लोग हैं, उनसे कहो बेचारे पूरे जामिया मिल्लिया वाले बेवकूफ थे, पूरे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले बेवकूफ थे, पढ़े लिखे पूरे जेएनयू वाले बेवकूफ थे जो रास्ते पर आ गए। वो पढ़े लिखे छात्र कुछ नहीं समझ सके, तुम जैसे जाहिल समझ रहे इस कानून को। सुनो, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो जुमला कह रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं, मैं भी मानता हूं सही है। हिंदुस्तान के उन मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं जिनके पास कागजात हैं। जिनके पास नहीं है उसको तो तुम मानते ही नहीं कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान है, सही सही। उसको तो तुम मानोगे ही नहीं कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान है। मेरे अजीजों, इस तरह से ये एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा मंसूबा है। अगर हम हिंदुस्तान में 25 करोड़ की तादाद में हैं तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 70% को या 60% के पास भी होंगे। 40% अगर मुसलमान बगैर कागजात के अगर हैं, जो गांव देहात में रहते हैं और बेचारे किराए के घरों में पूरी पूरी कई पीढ़ियां गुजार चुके हैं, वो अगर नहीं पेश करते तो उन मुसलमानों का क्या होगा? हैरत की बात है, पाकिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए, अफगानिस्तान से आए हुए, उनको तुम अपनी शहरियत देना चाह रहे हो और अपने मुल्क के लोगों को बाहर भगाना चाह रहे हो। ये कैसा सबका साथ सबका विकास? हकीकत ये है, इस कानून के जरिए से इसका जो साइड इफेक्ट होगा, मैं हुकूमत तक ये बात भी पहुंचाना चाहूंगा, तुम आतंकवाद को दावत दे रहे हो, सही। तुम दहशतगर्दी को दावत दे रहे हो, इसलिए कि अब पाकिस्तान का लश्कर-ए-तैयबा, जैश मोहम्मद और अफगानिस्तान के तालिबान या फिर बांग्लादेश की कोई कट्टर तंजीम जिसको तुम आतंकवाद घोषित कर चुके हो, ये हिंदुस्तान में आएंगे। वो बोलेंगे मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं पारसी हूं, मेरे ऊपर हमारे मुल्क वाले अत्याचार कर रहे थे, मैं आ गया हूं। वो तो आ जाएगा, अब वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आएगा, तुम्हारे सीएए के जरिए से आकर हिंदुस्तानी बन करके हमारे दरमियान फसाद मचाएगा। इस कानून के जरिए से आतंकवाद को दावत दी जा रही है। पहले तो ये था तो हम बॉर्डर पर निगरानी रखते, अगर कोई बाहर से मुल्क में खराबी पेश करने की कोशिश करता, हम सब मिलकर के उसको भगाते, हम सब उसको पकड़वाते, हम उसकी मजम्मत करते दहशतगर्दों की। लेकिन तुम तो कानून ऐसा ले आए, अगर कोई पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इसलिए कि आतंकवाद का कोई दीन होता ही नहीं, वो जहां जाएगा मजहब चेंज करेगा। इसके उदाहरण है हमारे पास, इसकी मिसालें हैं हमारे पास। ISIS इराक की, ये जो दाइश तंजीम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवाद तंजीम थी, इसमें कितने तो ऐसे थे जो अपना मजहब, अपना नाम चेंज करके दूसरी कंट्रीज में फसाद मचा रहे थे। ये आज हमारे मुल्क में भी अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के या पाकिस्तान के अगर आ गए और तुमसे वो ये कहे मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, क्रिश्चियन हूं, तुम तो उसको सिटीजनशिप देकर हमारे घरों के आसपास बसाओगे और वो फिर हमारे जान के लाले पर जाएंगे। हम इसके मुखालिफ नहीं है। कुछ हिंदुओं को भावुक कर रहे हैं यहां पर कि देखो ये पूरे मुसलमान सड़कों पर उतर आए और ये कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं को क्यों सिटीजनशिप दी जा रही है। मेरे अजीज, कान खोल करके सुनो, जितने हिंदू आना चाहे सबका इस्तेकबाल है। ले आओ, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में तुम कहते हो हिंदुओं पर अत्याचार या जो भी माइनॉरिटीज पर वहां पर तकलीफें हो रही है, मना किसने किया उनको यहां लाने से? हम मना नहीं करते, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, ये जितने यहां पर मुसलमान प्रोटेस्ट के लिए है, तुम बुलाओ इन तीनों कंट्री से जितनी माइनॉरिटीज है सबको खाली करके यहां लाओ। हम मना इस बात का नहीं कर रहे, हम तो यहां पर NRC के बारे में पूछ रहे हैं। जब तुम यहां के मुसलमानों को बाहर निकालोगे, हम तो तुम्हारे सीने पे चढ़ के बात करेंगे।